नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच सुबह की कुछ खास खबरों संग। और खबर की शुरुआत करते हैं पंजाब के मोगा जिले से, जहां दवा की दुकान पर ड्रग इंस्पेक्टर पुलिस की रेड पड़ी है। जी हां, ये पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मोगा में कोरोना वायरस के चलते जहां डीसी मोगा की तरफ से किराना की दुकानों और दवाइयों की दुकानों को पास जारी किए गए थे, वहीं कुछ मेडिकल स्टोर पर सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट दिनों में दुकान खोलने के लिए पास जारी किए गए थे। लेकिन आज मोगा के ड्रग इंस्पेक्टर मैडम सोनिया और पुलिस पार्टी की तरफ से एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई और पाया गया कि वह आज बिना अनुमति के दवाइयां बेच रहा था। वहीं जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर मैडम सोनिया ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर मोगा संदीप हंस की तरफ से कुछ मेडिकल दुकानों को अल्टरनेट डेज पर खोलने की अनुमति थी, लेकिन हमें शिकायत मिली थी कि यह मेडिकल स्टोर आज बिना अनुमति के ही दुकान खोले हुए हैं और दवाइयां बेच रहा है। उन्होंने कहा था कि ना कि इस मेडिकल दुकान वाले के पास, लेकिन आज वह खोल नहीं सकता था, जिसके चलते पुलिस पार्टी समेत आज रेड की गई और उसका पास रद्द कर दिया गया। वहीं मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि वह अपनी बेटी के लिए दुकान पर दवाई लेने आया था और बाहर एक ग्राहक खड़ा था, जिसे देख करके उसको भी दवाई दे दी। ठीक उसके बाद ही पुलिस पार्टी द्वारा रेड की गई। उन्होंने कहा कि आज के लिए मेरे पास नहीं था। देखें कोट इसे खान से राम लुभाया की रिपोर्ट। ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਡਰੱਗ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਪਾਸਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਸਿਸ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-21 ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22-23 ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 24-25 ਮਤਲਬ ਆਲਟਰਨੇਟ 2 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਰੱਗ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅੱਜ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੁਣ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪਾਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अजय कुमार किस नाम ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? कबीर मेडिकल स्टोर। ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਾਹਕ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵਗੈਰਾ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਪਾਸ ਇਸ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਾਸ कैंसिल कर दो। अगली खबर उत्तराखंड के गदरपुर जिले से आ रही है, जहां पूर्व विधायक प्रत्याशी की जनता से अपील आई हुई है। जी हां, खबर उत्तराखंड के गदरपुर थाना क्षेत्र के कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं मुस्लिम समाज की पवित्र माह रमजान उल मुबारक नज़दीक आ रहा है। मुस्लिम समाज इस पवित्र माह में 15 से 16 घंटे भूख और प्यास की शिद्दत में रहते हैं और 30 रोजे रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। इसी को लेकर पूर्व विधायक प्रत्याशी टोनी पठान ने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि मुकद्दस रमजान में अपने अपने घरों में रहें, तरावी और नमाज पढ़ें और घर पर ही रहकर खुदा की इबादत करें तथा कुरान भी घर पर ही पढ़ें और लॉकडाउन का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखें और खुदा से कोरोना जैसी बीमारी को भारत से खत्म करने के लिए अल्लाह से दुआ करें। देखें केलाखेड़ा से मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। मैं मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ, जिस तरीके से ये कोरोना बीमारी जो पूरी दुनिया में चली है और हमारे देश में भी इसका थोड़ा लक्षण है जिस तरीके से भी हैं, तो जिस तरीके से मुसलमान भाई अपनी
नमाज़ें घरों में अदा कर रहे थे, उसी तरीके से हमें रमज़ान शरीफ में भी अपनी नमाज़ें घरों में ही अदा करनी है, तरावी भी घरों में ही पढ़नी है और सरकार का पूरा समर्थन करना है। जो हमें गाइडलाइन दी गई है उसका पूरा पालन करेंगे, जिस तरीके से हम पहले से करते चले आ रहे हैं। इसी से हमारे देश का भला है। और जिस तरीके से हमारे नमाज जुमा हमने अपने देश के लिए छोड़ दी, जुमे की नमाज़ अपने घर में पढ़ते हैं, सबे कद्र की रात एक इबादत की रात होती है, वो भी हमने नफिल अपने घर पे पढ़े। और अब तरावी भी इस देश के लिए कुर्बान, मुसलमानों ने भारत देश के लिए बहुत बहुत कुर्बानी दी हैं और ये भी कुर्बानी हमारी इस देश के लिए कि हम अपनी जो कुरान शरीफ हमारा मस्जिदों में होता था, अब वो कुरान शरीफ मस्जिदों में नहीं होगा, हम अपने घरों में जो है उसको पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस आफत परेशानी को भारत से और पूरी दुनिया से जल्दी ख़त्म करने की दुआ करेंगे और सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है कि भीड़ ना लगाएं, सरकार का समर्थन करें, पुलिस का समर्थन करें, बहसबाजी नहीं करें। आज देश एक बहुत बड़ी बीमारी के दौर से गुजर रहा है, हमें इसका फुल समर्थन करना चाहिए, जब भी हम एक सच्चे मुसलमान हैं और पक्के मुसलमान हैं। अगली खबर महाराष्ट्र के मुंबई से आ रही है, जहां तहसीलदार चौहान का मिशन मदद महाराष्ट्र, जी हां, महाराष्ट्र के मुंबई जिले के प्रांतीय चौहान संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता व उत्साही समाजसेवी तहसीलदार चौहान द्वारा अंशु केजरीवाल के सौजन्य से पूरे परामर्श की भावना के साथ खाद्य सामग्री वितरित करके लॉकडाउन के कारण काम धंधा बंद हो जाने से उत्पन्न मुसीबत की मार झेल रहे कुछ जरूरतमंद परिवारों को मदद करने का नेक कार्य किया जा रहा है। मुंबई के कांदिवली पूर्व में स्थित क्रांति नगर, अप्पापाड़ा, हनुमान नगर एवं आसपास की एरिया में रहने वाले कुल 30 से भी अधिक जरूरतमंद परिवारों को चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, बटाटा प्रदान करके बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इस तरह से अब तक 15 बार में कुल 580 से भी अधिक परिवारों की मदद की जा चुकी है। प्रांतीय चौहान देखे महाराष्ट्र से भगवती दिलीप शुक्ला की रिपोर्ट। चौहान जी जो है इनके पास सारा स्टॉक है, राशन की सारी चीज़ें हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे चावल है, गेहूँ है और आटा है, वो सारा चीज़। आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? किरण जी, आप यहाँ पे किस चीज़ की रही हो? राशन जी जी जी। आप कहाँ रहते हैं? आपके पास राशन कार्ड है? अच्छा, तो इसके पहले आप कैसे देखते थे? इसके पहले आप घर कैसे देखते थे? जी जी, धन्यवाद किरण जी। चलिए हम आगे देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं चौहान जी के द्वारा दिया हुआ आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, फिर से इन्होंने डाल दिया है, 2 पैकेट डाल दिया है, आलू और कांदा। अंकल लाइन मत लगाइए, जल्दी में जाने दीजिए लोगों को। फास्ट न्यूज़ इंडिया से भगवती शुक्ला की रिपोर्ट, राहुल शिंदे के साथ। अब इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक, अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर।
सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटस, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के लखनऊ से। जी हां, लॉकडाउन के चलते मजदूर घर जाने को है मजबूर। जी हां, यूपी के लखनऊ के गांव सुल्तानपुर के 11 लोग लुधियाना की एक फैक्ट्री में रोजी रोटी के लिए काम करते थे, लेकिन महीना भर लॉकडाउन के चलते मजबूरन फैक्ट्री छोड़कर अपने परिवार के पास साइकिलों से ही चल दिए और 850 किलोमीटर दूरी तय करने का फैसला कर लिया। देखें मोगा से नरेंद्र कुमार नारंग की रिपोर्ट। बिठाओ, बैठो। ये देखो अपने घर को निकल पड़े हैं लुधियाना से यूपी के लिए। यहाँ इनका सफ़र है 850 किलोमीटर। लखनऊ से आगे है सुल्तानपुर, शहर पड़ता सुल्तानपुर। ये वहाँ पहुँचेंगे। ये 11 लोग हैं, देखो अपने घर को जा रहे हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अभय है। अभय जी, आप क्या जानकारी देना चाहोगे? जैसे आप लुधियाना से निकल पड़े हैं अपने घर को। अब सर जी क्या जानकारी देंगे सर जी। पैसे था हमारे पास जो खर्च हो गया रास्ते में ही। अब पैसे मेरे पास है नहीं, कोई खाने के लिए नहीं पूछता है, ना कोई कुछ लिए पूछता है। तो क्या करें, हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। हमारे बच्चे हैं रो रहे हैं और हमारी बीवी रो रही है, हमारे माता पिता रो रहे हैं। अब क्या करें हम लोग? देखो ये कह रहे हैं हमारे बच्चे रो रहे हैं, मेरी माँ बोल रही है वो मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बाप बोल रहा है बेटा कब आएगा, मेरी बीवी बोल रही है मेरा पति कब आएगा, और मेरे बच्चे बोल रहे हैं पापा कब आएगा। देखो ये कर्फ्यू के दौरान जो पंजाब में लॉकडाउन, इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, देखो ये बेचारे करें तो क्या करें। ये अपना मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहे थे यहाँ फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के मालिकों ने कहा कि अब आपको हम नहीं रख सकते, और इनको यहाँ बेचारों को भेज दिया कि अपने घर चले जाओ। ये कैसे जाएं? ये साइकिल है 850 किलोमीटर साइकिल रास्ता कोई तय करने वाला बहुत मुश्किल काम है। देखो ये आपको कितने दिन लगेंगे? करीब करीब सर जी 10-11 दिन तो लग ही जाएगा। देखो ये 11 दिन है। आपके पास कुछ खाने को है? सर जी मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं थोड़ा चना भिगोया था, वही साथ में लेके आया हूँ। देखो ये बेचारे करे तो क्या, ये भी इंसान हैं। ये अपने पेट के लिए चना, इनके पास कोई खाने को रोटी नहीं है, और ये कहते हैं हमारे को प्रशासन ने यहाँ लुधियाना में कुछ नहीं दिया। आपको किसी प्रशासन ने कुछ राशन वगैरह दिया? नहीं सर, जो देते भी थे दोपहर को आते थे, 2 रोटी देते थे, उसके बाद 3-4 बार फोटो खींचे थे और उसके बाद चले जाते थे। फिर कोई नाम जैसे कोई लेता ही नहीं था। ये कह रहे हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है, हमको 2 रोटी देके और फोटो खींचते थे, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। देखो अब करे तो क्या करे? अब सर क्या करेंगे? हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं। अगर पहुंच पाएंगे तो पहुंच पाएंगे, अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर जो होगा रास्ते। आपने लुधियाना में किसको बताया हम जा रहे हैं? अब हमारे बाबूजी जानते हैं, बाबूजी को बोल दीजिए, हमारे मालिक थे सर से। क्या नाम फैक्ट्री का आपका? सर जी PVC ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है सर। बाबू का क्या नाम है? बाबूजी का नाम नहीं पता है हमको। ठीक है, वो बड़े सर है, उनका नाम जानकर क्या करेंगे। ये साइकिल फिर कहाँ से लिया आपने? साइकिल लुधियाना में जनकपुरी में लिया है। जनकपुरी ने? पैसा कहाँ से आया आपको? सर जी मेरे पास मेरे बाबू जो है ना वो पैसा दिया था, थोड़ा बहुत जो हमारा बच रहा था
वही उसी पैसे से शायद। ये देखो बेचारे मजदूर, देखो लुधियाना से यूपी को निकल पड़े हैं अपने घर को जाने के लिए। इंडिया में इस टाइम लॉकडाउन है और देखो तो जाए कहाँ। ये कह रहे हमको 2 वक्त की रोटी, सिर्फ 2 रोटी देके और फ़ोटो खींच के चले जाते थे। अब इनका क्या किया जाए। कैमरामैन बॉबी गिल के साथ राम शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी पंजाब से आ रही है, जहां डीसी के निर्देश की सरेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। जी हां, पंजाब के मोगा में मीडिया की तरफ से किया गया रियलिटी चेक। तुरंत हुआ बड़ा एक्शन। पुलिस ने फैक्ट्री को किया सील। एक तरफ जहां पूरे पंजाब में कोरोना के चलते सभी फैक्ट्रियों को बिना मंजूरी चलाने की सख्त मनाही है, वहीं दूसरी तरफ मोगा में डिप्टी कमिश्नर के हुक्मों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भुजिया की फैक्ट्री बिना मंजूरी चलाई जा रही है। हैरानी इस बात की है कि बिना मंजूरी चली इस फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के ना तो मास्क पहने हैं और ना ही हाथों में दस्ताने लगाए हैं। यही नहीं, फैक्ट्री में जमीन पर ही गंदी जगह पर भुजिया फैला हुआ था और जो बर्तन थे उसको एक बाथरूम में रखा गया था। मीडिया की तरफ से किया गया रियलिटी चेक में पाया गया कि फैक्ट्री मालिक के पास किसी भी तरह की परमिशन नहीं है। मीडिया की तरफ से रियलिटी चेक के तुरंत बाद ही पुलिस द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया। साथ ही पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची, जिसने अंदर मौजूद सभी मजदूरों को राउंड अप करते हुए उन्हें थाने ले गई। साथ ही पुलिस द्वारा इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। देखे कोटे इसे खान से राम लुभाया की रिपोर्ट। क्या मतलब है वीडियो बनाने? मनोज पांडे जी। पांडे जी, ये आपकी जो चल रही है फैक्ट्री चल रही है, परमिशन ली थी आपने? हाँ जी, है परमिशन आपके पास? हाँ जी सर, बात हुई अपने पेपर के भी आया सीगा कि वो जोड़े बंदे अंदर हैगे सर, इनका बाहर आना जाना कोई नहीं हैगा, अंदर काम कर सकते हैं। कोई अपने को बाहर ही बंदा नहीं आता जी इतने। ठीक है जी। तो मास्क का भी क्या गया सी ना, मास्क पाना? हाँ जी सर, सारे तो कोई मास्क नहीं का अंदर? मास्क सर निकाल के रखे अंदर, ये बाहर बंदे नहीं जानते जी, ये अंदर ही रहते हैं। तो गंदगी सर सब साफ सफाई हैगी, गंदगी कोई नहीं। बाथरूम में तो आपके बर्तन पड़े हुए हैं। बर्तन नहीं सर, कोई बर्तन नहीं है अंदर सर। तो हमने तो अभी रियलिटी चेक किया है। नहीं सर, ना किसी के मुंह में मास्क है, ना कोई ग्लव्स है। सर जी मास्क जोड़े हैं कि वो अंदर ये बाहर तो जानते नहीं। नहीं, काम करते वक्त तो मास्क लगाना जरूरी है ना। इनको पैर गंदे हैं, वही फर्श पे लेके जा रहे हैं, वहीं पे भुजिया पड़ा है, वही भरी जा रहे हैं पैक। वही झाड़ू से इकट्ठा कर रहा है। वही झाड़ू से इकट्ठा कर रहा है। नहीं सर, ये तो हमारे पास है, चलो कोई बात नहीं, आप बताएं क्या कहने। सर साफ सफाई बिल्कुल है कि सारा कुछ है सर, ठीक है ना। जिन दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई थी वही दुकानें खुल रही हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया था कि कोई भी मर्जी दुकानें खोल सकता है। आपने परमिशन ली? सर जी मेरी बात सुनिए, ये अंदर बंदे हैं, ये कहते मैं पैदल जाना है पहले जी, फिर आप क्या करते आप बताओ। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हाँ जी, परमिशन ली आपने? सर परमिशन तो है अपने पास, परमिशन है। परमिशन दिखा दीजिए अपनी। हमने पूछा उनसे, वो बोले किनसे पूछा है? किनसे पूछा है? सर पेपर में आया हुआ था कि छोटे मोटे फैक्ट्रियाँ चला सकते हैं कि नहीं। आपके पास परमिशन है आपके नाम से? सर जी परमिशन लेना किससे, आप ये बताइए किनसे लेने परमिशन? आपके पास परमिशन नहीं है फिलहाल में है, हमने पूछा था। जो परमिशन है आपके पास, रिटर्न में है कुछ? हाँ जी है, वो दिखा दीजिए। पेपर में आया हुआ था सर, उसने वो हमने देख करके तो पूछे, लोग बोले कि छोटे मोटे बंदे जो अंदर 2 4 5 बंदे हैं वो चला सकते काम जी। उस आधार पे कितने बंदे काम करते हैं अंदर? 5 बंदे हैं सर। नहीं, मोगा डीसी से कोई परमिशन लिया आपने? हाँ जी, जो प्रधान जी थे हमारे, उनसे पूछा। कौन से प्रधान? क्या नाम है उनका? अपने तो MC है सर, बड़े MC, उनसे बात हुई थी लोगों से कि भाई 4 5 बंदे कला काम हो, बाहरी बंदा कोई नहीं आना चाहिए फैक्ट्री के अंदर। हमने कहा सर नहीं। सर बात तो आप बिना MC के कहने पे ये काम कर रहे हो? नहीं, जैसे कई लोग बात हुई, और भी फैक्ट्रियाँ चलती हैं सर यहाँ पे, ठीक है ना, 2 4 फैक्ट्रियाँ। आप ये बता दीजिए, परमिशन आपने DC की परमिशन है आपके पास, DC मोगा की? नहीं सर, हमने परमिशन नहीं लिया हुआ है। अच्छा साहब, एक रेड ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪੂਰਾ? ਸਾਨੂੰ ਟਿਪ ਆਫ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪਕੌੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਉਹ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ? ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? हाँ, 2-3 बंदे राउंड अप किए ਜਿਹੜੇ अंदर ਸੀ। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर।
यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज बनाएंगे बुलंद आवाज। नमस्कार।